इसका क्या करना है, सेव करना है। धर्मेंद्र क्रिएट कॉन्टेक्ट धर्मेंद्र की सर वॉइस येत नाहीये सर. स्क्रीन दिसते का? हो सर, स्क्रीन दिसते. कंप्लीट. हो सर. काय दिसतं? प्रॉब्लेम दिसतंय? प्रॉब्लेम दिसतोय का कंप्लीट? हो सर, दिसते सर. The ratio between the volume of two spheres is 8:27. Yes, 8:27. Then find the ratio between their surface area. It is asked to find the ratio between their surface area. Now V1 upon V2 is 8/27. What is formula of volume? 4/3 pi r cube because of sphere. So 4/3 pi r1 cube upon 4/3 pi r2 cube. 4/3 pi will be cancelled from both the numerator as well as denominator. We directly get r1 cube upon r2 cube, which is 8/27. r1 upon r2 will be 2/3. But our question is to find the ratio of their surface areas. So the formula of surface area will contain the squares of radius. The formula of surface area will contain the squares of radius. So the ratio of their surface area will be 4:9. Whatever it may be. क्या होगा? कैलकुलेट कितना होगा? हमारे पास ऑप्शन है 2:3, 4:5, 5:6, 4:7. So now to find the ratio of their surface areas. Sir. Yes, yes. Sir, the options are wrong. The answer will be 4:9. 4:9, yes. Change the option last 4:9. Answer is 4:9. I told, yes. Okay, sir. You are right. Yes, yes. देखिए हमने R1 upon R2 जो मिला था हमको 2:3, but this is not our answer. It is the ratio of radii. हमको फाइंड करना है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया फॉर अदर. सरफेस एरिया का फॉर्मूला में रेडियस का स्क्वायर आता है. व्हाट इज द सरफेस एरिया का फॉर्मूला? 4 पाई r1 स्क्वायर. 4 पाई स्फीयर में r2 स्क्वायर will be what? The ratio you have to find. 4 pi will be cancel. r1 upon r2 bracket square इसको convert करो, which is 4/9. So our answer is 4:9. Our answer is 4:9. Our answer is 4:9. That is the end of this problem. Now in each problem we have to use some trick. Once we have taken this type of problem of volumes, now the number of solid spheres, each of diameter, हर एक की डायमीटर है 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर.
that could be molded to form the number of solid spheres, each of diameter 6 centimeter, that could be molded to form a solid metal cylinder. A solid metal cylinder. मेटल सिलेंडर. सिलेंडर का प्रॉब्लम है, आज पहली बार ले रहे हैं हम. सॉलिड मेटल सिलेंडर. हाइट 45 centimeter and radius of base 4 centimeter. ऑप्शंस है, ऑप्शंस 3, 4, 5, 6. Number of solid spheres of diameter 6 centimeter that could be molded to form a solid metal cylinder. दोनों के वॉल्यूम सेम होते हैं. Number of spheres into volume of one sphere equals to volume of solid cylinder. Diameter 6 मतलब radius 3 हुआ sphere का. What is the volume of sphere formula? देखिए प्रॉब्लम. नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स, जो स्फीयर के डायमीटर है 6 मतलब उसका रेडियस हुआ 3 सेंटीमीटर. सो स्फीयर का रेडियस 3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फर्स्ट in terms of pi. Do not calculate it. Now ये है हमारा सॉलिड सिलेंडर. हाइट है 45 सेंटीमीटर और रेडियस है 4 सेंटीमीटर. रेडियस 4 के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा शायद. है ऑप्शन में भी बदलाव कर सकते हम, होता है कभी कभी. एक काम करो, रेडियस के बजाय डायमीटर लो 4 सेंटीमीटर इसमें. अब बताओ, डायमीटर 4 मतलब इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर लो. डायमीटर मतलब रेडियस 2 सेंटीमीटर. अब करो प्रॉब्लम. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला बताता हूँ. स्फीयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब. ये स्फीयर है. Sir, please on the chat. पाई आर Hello, स्क्वायर sir. एच. चैट की कोई जरूरत नहीं. आप आंसर मिला क्या आपको, किसी को? देखो, अगर आंसर क्या होता है, बहुत सारे लोगों के आंसर आते हैं. अगर आया तो अच्छी बात है, हम दूसरे प्रॉब्लम की ओर जाएंगे. Got the answer, sir. 5 is the answer. ओके ओके. कैसे किया? वॉल्यूम ऑफ Sir, स्फीयर इज matching डिवाइडेड टू volume of sphere will be equal to the volume of cylinder. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू वन नंबर. N Yes. number will consider and the answer will be 5. yes बराबर है. The cylinder's volume is divided by
The volume The of volume cylinder of is volume of volume of sphere. sphere. यस, सब लोगों के लिए यही प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, मोल्डिंग, मेल्टिंग ऑफ। तो ये वॉल्यूम ऑफ स्पीयर जो है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो पाई आर स्क्वायर, उसमें भी पाई है, उसका जो रेडियस है 2 का स्क्वायर होगा 4 इंटू एच है 45। ये हुआ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। एक स्पीयर का वॉल्यूम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ स्पीयर मिल जाएंगे 4/3। ये 4/3 वैसे रहेंगे। आर क्यूब, व्हाट इज द रेडियस? 6 तो रेडियस 3 मतलब 3 क्यूब, 3 3 3, बट एक 3 चला जाएगा तो डायरेक्ट लिखता हूँ 9 पाई, 9 इंटू 4 पाई, तो ये 4 4 पाई पाई चले गए, तो 9 5s are 45। That is your answer, 9 5s are 45। 5 is the number of spheres। Very good। बाकी लोग भी देख लो। एक सिलेंडर जो है उसको मोल्ड करके एक स्पीयर बनाया है, ये ऐसा सिलेंडर है, इसको मोल्ड करके एक ऐसे छोटे छोटे स्पीयर बनाए हैं डायमीटर 6 सेंटीमीटर के, तो इसके एक का वॉल्यूम इसको डिवाइड करेगा पूरे के वॉल्यूम को, तो नंबर ऑफ ऐसे बहुत सारे स्पीयर मिल जाएंगे। दैट इज आवर प्रॉब्लम, दैट वाज आवर हिंट। नाउ नेक्स्ट वी हैव a cylinder whose height is h means height। एक सिलेंडर है whose height is, सिलेंडर के प्रॉब्लम आ रहा है आज। 2/3 ऑफ हाइट जो है 2/3 ऑफ इट्स डायमीटर। डायमीटर मतलब डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर का मतलब सिलेंडर के बेस के डायमीटर से 2/3 है हाइट। has the volume as a sphere of radius 4 centimeter। has the volume of वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम है एज सेम एज स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो what is the, see the problem, a cylinder whose height is 2/3 of its diameter। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट और डायमीटर का रिलेशन दिया है, एंड इसका जो वॉल्यूम है, एक जो 4 सेंटीमीटर का स्फीयर है उसके वॉल्यूम जैसा है, then what is the radius of the base of the cylinder? Then radius of cylinder equals to सिलेंडर के बेस की रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर विल बी ऑप्शन ए। सो 4 5 3 6, फिर से 4 5 3 6, these are the 4 options। See the problem, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 2/3 ऑफ इट्स डायमीटर है और उसका वॉल्यूम 4 सेंटीमीटर वाले रेडियस वाले स्फीयर जैसी है, तो ये दोनों के वॉल्यूम सेम है, इक्वेट कर लो। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। तो पहले में क्या दिया है, पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन दिया है जो सिलेंडर है उसका जो हाइट है वो 2/3। देखिए हाइट इक्वल्स टू 2/3 इंटू डायमीटर है, डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करो, h इक्वल्स टू 2/3 इंटू r/2, ये 2 कैंसल, सो हाइट इज r/3। हाइट जो है 1/3 ऑफ रेडियस हो गई, हाइट इज 1/3 ऑफ रेडियस। सिंपल है, तो इसमें 2/3 मतलब डायरेक्ट हो जाता है 1/3 ऑफ रेडियस हाइट, तो हाइट इज 1/3 ऑफ रेडियस, उसको लेके आगे जाएंगे। अब ये सिलेंडर के लिए, तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो दोनों वॉल्यूम हम इक्वल लिखेंगे v1 v2। सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई r1² h और इसका वॉल्यूम है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई,
r1 क्यूब। इसका रेडियस दिया है हमें 4 और इसका रेडियस हाइट से रिलेटेड है, तो ये पाई दोनों साइड से चले जाएंगे, पाई विल बी कैंसल्ड। अभी r1 मतलब रेडियस कंसीडर करो, इसको r बोलिए और इसको r1 कंसीडर कीजिए राइट साइड। ये v कहिए और ये v1 कहिए, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए इजी जाएगा। ये r square h is related with 1/3r, so r square into 1/3r, ये r अलग है, will be 4/3, पाई तो कैंसल हुआ, r1 क्यूब, व्हाट इज r1, 4 क्यूब, मिल गया आंसर। तो ये r क्यूब आएगा, r क्यूब विल बी, ये 3 कैंसल होगा, 3 कैंसल हुआ, 4 r क्यूब विल बी। कुछ गलती हो रही क्या, देख लो कैलकुलेशन में। h is 1/3 of radius, बराबर है 1/3 ऑफ रेडियस। कैलकुलेशन देखो, आपका जो हाइट है वो 2/3 डायमीटर है, डायमीटर मतलब r/2, सॉरी 2r, ये गलत हुआ था, 4/3r, ये रिलेशन चाहिए, मिस्टेक देख लीजिए, ठीक है, होता है। h is 4/3r। अब हम जाएंगे पहले का फॉर्मूला, हेलो बाय सर। r, हाँ ये चाहिए 4/3, d के सर जगह 2r 16 आएगा ना? 6, नहीं 4 आता ना आंसर, ओके सर। 4 आता, 4 आता आंसर, 4 ओके आ रहा था, वो आंसर 4 है, वो r क्यूब इक्वल्स टू एक 4 एक्स्ट्रा आ रहा था, बाय r स्क्वायर h चलेगा। इक्वल्स टू ओके सर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 बाय r क्यूब मतलब 4 क्यूब। अब आंसर आता 4। ये जो r और h में रिलेशन है उसमें एक 4 है, 4/3r, ये यूज होता है h के जगह, ये पाई चला जाता है। अभी r स्क्वायर, r एस एच, h is 4/3 पाई, 4/3r, r, तो ये दोनों r क्यूब होते हैं, ये 4/3 आगे काम आता है, 4/3 into 4 क्यूब, ये 4/3 कैंसल, r cube is 4 cube, r will be 4, so the base radius of the cylinder is 4, then base radius of cylinder is 4। अच्छा एक्सप्लेन हुआ है, देख लो बाद में, तो मिस्टेक होने चाहिए, मिस्टेक से भी हम सीखते हैं। चलो ऐसे ही प्रॉब्लम के साथ लेके जाएंगे, ऐसे उठाए हम। नेक्स्ट, एक कोन है जिसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर, कोन जिसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर, कोन की हाइट है 30 सेंटीमीटर, उसका जो टॉप है, स्मॉल कोन, फ्रस्टम है, फ्रस्टम शुरुआत, स्मॉल कोन इज कट, एक स्मॉल कोन को कट किया है, एक पहला कोन है जिसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर, तो एक स्मॉल कोन को कट किया है, स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप, टॉप में, एट द टॉप में एक कोन को कट किया, देखो a cone of height 30 centimeter, a small cone is cut off at the top। अभी इसमें आपको सोचना पड़ता है कहाँ से कट किया होगा, एक स्मॉल कोन को कट किया है एट द टॉप बाय प्लेन पैरेलल टू द बेस, जरूरत नहीं कैसे कट किया, बाय अ प्लेन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, पैरेलल टू बेस, ओके।
कोन कट हुआ मतलब वो कोन के साइड में कट होगा, बेस में थोड़ा कोन बनता है, बेस में कोन नहीं बनता है, क्योंकि ये दूसरा भी कोन बनना चाहिए। पहले कोन से दूसरा कोन कट किया तो कौन साइड से कौन बने कट किया है। पहले का हाइट है टोटल 30 सेंटीमीटर, पहले का हाइट। इफ इट्स वॉल्यूम इज, अभी जो नया कोन है उसका वॉल्यूम जो है 1/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन। अभी ये जो नया कोन है ये स्मॉल कोन, इफ इट्स वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन विल बी 1/27 वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन, गिवन कोन का वॉल्यूम, गिवन कोन के वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम जो है 1/27 है। एक कोन का हाइट है 30 सेंटीमीटर, एक स्मॉल कोन कट हुआ है टॉप से, और अब ये स्मॉल कोन का जो वॉल्यूम है 1/27 ऑफ द गिवन कोन। हमारे लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसा बनेगा? बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ध्यान दो स्टूडेंट, सिर्फ जरूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना चाहिए। गिवन क्वेश्चन कौन से कंसेप्ट के ऊपर है उसको देखते जाइए, वो कंसेप्ट कैसे आए होंगे, कौन का वॉल्यूम कैसे बना होगा, फिर कौन से कट करते समय कौन से साइड में कट करेंगे हम। दो साइड से, बेस से भी कट होता है, बट यहाँ कौन से कट हुआ है क्योंकि दूसरा भी कौन बनता है। तो ये एक्चुअल डायग्राम हमें ड्रॉ करते आनी चाहिए, कैसे हो सकती है इमेजिन करना चाहिए। अब नया जो कोन आया है स्मॉल कोन, उसका जो वॉल्यूम है वो है 1/27 of the volume of original cone. Then at what height the above base is the section made? कौन से हाइट में ये सेक्शन बना है ओरिजिनल कोन के, at what height? तो उसके आंसर से 20 ऑप्शन है, 20 ऑप्शंस, 20, 25, 10 and 15 centimeter. At what height? At what height the section is made? सेक्शन कौन से हाइट में बना है बेस से? आप लोग बहुत देर से प्रॉब्लम को देख रहे थे, अभी मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम बहुत ही सिंपल है। आपके पास ऑप्शन है 20, 25, 10 एंड 15। तो एक कोन है अपना पुराना, दिस इज योर कोन। ये जो कोन है, यस, इस कोन का हाइट जो है, द हाइट ऑफ द कोन इज 30 सेंटीमीटर गिवन। टोटल हाइट, हाइट मतलब परपेंडिकुलर हाइट, कभी भी याद रखो। दिस इज 30 सेंटीमीटर वी आर गिवन। अब इससे एक स्मॉल कोन कट किया है, नीचे से कोन नहीं कट होगा, इधर से कोन कट होगा ना। इसमें एक सोचने वाली बात है, कोन जब कट होगा तो यहाँ से कट होगा। बहुत सही क्वेश्चन है। तो ये किसी जगह से एक कोन कट हुआ, समझो ये ऐसा कट हुआ। सो अ कोन इज कट फ्रॉम दिस पोर्शन, एक कोन कट हुआ है, ये ऐसे कट हुआ है। तो मैं उसको कट करता हूँ, देखिए हमने इसको कट किया, दिस इज अ कोन कट, यहाँ से कट हुआ, देखो ओरिजिनल कोन भी दिख रहा है, नया कोन कट हुआ। अब इसका जो वॉल्यूम है, ये टोटल कोन का जो वॉल्यूम है उससे 1/27 है। तो ये स्मॉल वी कहेंगे और एक कैपिटल वी कहेंगे ओरिजिनल का। तो स्मॉल वी जो है 1/27 कैपिटल वी है, मतलब कैपिटल वी इसके 27 टाइम है ये स्मॉल वी के। इसमें सब कुछ आता है। स्मॉल वी इज 1/27 ऑफ कैपिटल वी। बहुत सही क्वेश्चन है। स्मॉल वी,
तो देखो ये कट होने के बाद ये रिमेनिंग हाइट है, ये हमें पूछा है कितने हाइट पे कट किया है, ये पूछा है। दिस इज आवर क्वेश्चन। हम इसको बोलेंगे एक्स हाइट, इसको एक्स कहेंगे, ये एक्स से समझो, और ये हो जाएगा 30 माइनस एक्स। तो 30 माइनस एक्स को फाइंड करना है। बताओ 10, 20, 25। एक काम करना है, चारों ऑप्शन को वेरीफाई कीजिए। समझो 20 हाइट पे कट हुआ, 20 हाइट पे, पंद्रह हाइट से कट हुआ, 25 हाइट से कट हुआ, 10 हाइट से कट हुआ, ऐसा करके भी आप इसके ऊपर जा सकते हो। अगर आपने ये 10 किया तो ये 20 रहेगा, ये 20 किया तो ये 10 रहेगा, ये 15 किया तो ये 15 रहेगा, 25 किया तो 5 रहेगा। चलो मैं एक हिंट देता हूँ आपको। सर हाँ बॉयस। सर अपन हाँ बोलो। रेडियस का क्या करेंगे पर? हाँ ना, वही तो, इसलिए मैं हिंट दे रहा हूँ। कैपिटल भी मैं हिंट दे रहा हूँ। हाँ, आप बाद में रेडियस कंसिडर करो, बहुत सही है। कैपिटल वी अपॉन स्मॉल वी कितना आया? 1/27। 1/27। बराबर है ना? ये आ गया कि नहीं? कैपिटल वी का वॉल्यूम म्हणजे ओरिजिनल, ये गिवन से हिंट है। अभी कैपिटल वी का वॉल्यूम क्या है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 पाई। दोनों में भी 1/3 पाई, तो ये दोनों चले जाएंगे, बाकी की बात हम बाद में लिखेंगे। तो इसको कैंसिल ही करते जाएंगे कभी भी, ऐसा सामने में। अब पहले का वॉल्यूम क्या है? आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको कैपिटल आर स्क्वायर कहेंगे। और एच मतलब इधर 30 है, 30 दिया है, और इधर जो है इसका रेडियस स्मॉल आर कहेंगे, स्मॉल आर। और इसके हाइट को हम एक्स कहेंगे, ये हाइट को हम एक्स कह रहे, हाइट वो 30 से रिलेटेड है, इक्वल्स टू 1/27। अब ये 1/3 पाई चले जाएंगे, सो कैपिटल आर, ये आर स्क्वायर है, तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 30/x 1/27। अब आपको सोचना है, सिमिलैरिटी यूज करनी है। देखो ये ट्रायंगल बन गया पुराना ओरिजिनल, और ये नया ट्रायंगल बनता है। सोच लीजिए ये ट्रायंगल कैसे बनता है, फिर से देखिए। वॉल्यूम, दिस इज आवर कोन। क्वेश्चन बहुत सोचने वाला है। ये हमारा ओरिजिनल कोन, ये हमारा ट्रायंगल, ये हमारा 90 डिग्री एंगल। ओके, यस। अब हमारा नया कोन यहाँ से कट हुआ, तो इधर भी हमारा 90 डिग्री एंगल हुआ। ये आर है, स्मॉल आर, और ये स्मॉल एक्स है। इसके लिए कंप्लीट ये कैपिटल आर है, और ये 30 उसका एक्स है, 30 उसका हाइट है। तो आपको मालूम है सिमिलैरिटी से, सिमिलैरिटी, दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये ओरिजिनल बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा सा ट्रायंगल, दिस टू आर सिमिलर। ये छोटा सा ट्रायंगल ऊपर वाला, और इसके साथ ये कंप्लीट ट्रायंगल, ये छोटा सा ट्रायंगल, ये छोटा सा, और ये कंप्लीट ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर है। नाम की कोई जरूरत नहीं, छोटा सा ट्रायंगल और ये कंप्लीट, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल, दिस टू आर, ये दो पैरेलल है ना, ये पैरेलल Sir, है answer इसको। is 20. Sir, answer 20. हाँ, कैसे निकाला अभी? तो ये जो रेशो है मुझे बाकी लोगों के लिए,
दिस साइड x अपॉन दिस साइड, ये दोनों रेशियो सेम है, दिस टू रेशियोज, कैपिटल 30 अपॉन स्मॉल x, कैपिटल R अपॉन R, the ratios. Sides of similar triangles are proportional. Sides of similar triangle are proportional. इधर ये उल्टा हुआ है, 27 होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, इधर से कैलकुलेशन में ध्यान दो। x की वैल्यू कितनी आई है? अब इधर हिंट नहीं मिला आपको, बाकी लोगों को ध्यान दीजिए, ये r अपॉन स्मॉल r ब्रैकेट स्क्वायर और 30 अपॉन x, ये दोनों रेशियो सेम है, ये 1/27 नहीं, ये गलती होगी, 27 सर upon 20 आन्सर आला. हाँ 20, हे आहे 20 आहे, बरोबर आहे. आता हा r अपॉन r आणि एक 30 अपॉन x, हे दोन्ही रेशो सारखे आहेत, हे दोन्ही रेशो हो. सारखे झाल्यामुळे r अपॉन स्मॉल r हा झाला 27, r अपॉन r Okay. क्यूब, हा आणि रेशो सेम म्हणून क्यूब झाला त्याचा स्क्वेअरचा, आणि म्हणून r अपॉन स्मॉल r झालं 3, म्हणजे हा रेशो 3 झाला. ओके, हा रेशो 3 होण्यासाठी 30 ला कशाने डिवाइड केल्यावर 3 होतो, समजलं? 10, म्हणून ये x ची व्हॅल्यू 10, म्हणून हा 20, दॅट इज आवर आंसर. समझ लो एक्सप्लेनेशन, बहुत सही है, बहुत सही क्वेश्चन है, ओलंपियाड का क्वेश्चन है ये, बेस्ड ऑन योर सिलेबस. फिर से देखो, आपने जो इक्वेशन बनाया था, मैं आपको बताता हूँ, r अपॉन स्मॉल r ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 30 अपॉन x इज 27. क्या है, समझ में आना चाहिए फॉर स्टूडेंट्स. अभी हम फिर से आपको बता दें, ये जो दो ट्रायंगल है, ये स्मॉल x ये 30 से रिलेटेड है, तो 30 अपॉन स्मॉल x इज कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल. ये देखो बड़ा ट्रायंगल, ये बड़ा पूरा ट्रायंगल. अब इसमें यहाँ जो छोटा बना है, मैं इसको छोटा इधर बनाता हूँ, ये उसका x है, ये उसका स्मॉल r है, ये 30 है और ये है कैपिटल R. तो 30 अपॉन x इज कैपिटल R अपॉन R, रेशियोज इक्वल होते हैं, सिमिलैरिटी. सो हमारे पास है 30 अपॉन x एंड कैपिटल R अपॉन स्मॉल r,